In previous lecture, I have told you about note making, how to make good notes. Today, today let us try. Let us try. Let us practice. I have sent you. I have sent you a passage. Hope you have received. Hope you have received the passage through WhatsApp group. Now, read it carefully. Read it rapidly. Read it quickly. Read the passage quickly. Uh, or read the passage how to make good notes. Let me remind you again. Read the passage quickly, carefully. Try to understand main points. Underline the keywords. Notes should be kept in points and appropriate form. Give a heading to your work based on following main idea of the passage. Right in the middle of the page. Yes. Give subheadings. You can also give subheadings. Points are to be noted under each subheading or subheadings. Subheadings. Yes. Do not write complete sentence only. Write only phrases. Abbreviation should be used. Articles, prepositions, and conjunctions are omitted. You can use standard abbreviations or symbols. You can use common abbreviations. You can use symbols. You can make your own abbreviation. Cautions. Don't use abbreviations endlessly. Don't abbreviate every word. One abbreviation in one point is enough. Heading should not be abbreviated. Yes. Yes, students. Yet let me read the passage. Effective speaking depends on effective listening. It takes energy to concentrate on hearing and to concentrate on understanding what has been heard. What has been heard. What has been heard. Incompetent listeners fail in a number of ways. First, they are drift. First, they may drift. Their attention drifts from what speaker is saying. Second, they may encounter. They find counter. They may counter. They find counter arguments to whatever a speaker may be saying. Third, they compete. Then they filter. They exclude. Yes, they exclude from their understanding those parts of the message which do not readily fit with their own frame of reference. Finally, they react, they let personal feelings about the speaker or subject overside the significance of the message which is being sent. What can be listened? What can a listener do to be more effective? The first key to effective listening is the art of concentration. If a listener positively wishes to concentrate on receiving a message, his chances of success are his chances of success are high. It may need determination. Some speakers are difficult to follow either because of voice problems or because of the form in which they send a message. There is then a particular need for the determination of a listener
to concentrate on what is being said. Yes, concentration is helped by alertness. Mental alertness is helped by physical alertness. It is not simply physical fitness but also positioning of the body, the limbs, and head. Some people also find it helpful to their concentration if they hold the head slightly to one side. One useful way for achieving this is intensive note taking by trying to capture the critical headings and subheadings the speaker is referring to. Note making has been recommended as an aid or help to the listener. It also helps the speaker. It gives him confidence when he sees that listeners are sufficiently interested to take notes. The pattern of eye contact when the note taker looks up can be very positive, and the speaker's timing is aided. He can see when a note taker is writing hard and can then make effective use of pauses. Posture 2. Posture, posture 2 is important. Consider the impact made by a less competent listener who pushes his chair backward and slouches. Slouch that is stands in a lazy way. An upright posture helps in listener's concentration. At the same time, it is seen by the speaker to be a positive feature amongst his listeners. Effective listening skills have an impact on both the listener and the speaker. Yes, dear students. Yes, note making. हाँ, in the middle हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हेडिंग इसकी आएगी, जो इफेक्टिव लिसनिंग है इससे पैदा होती है इफेक्टिव स्पीकिंग। हाँ, तो हेडिंग यहाँ लिखेंगे हम, इफेक्टिव लिसनिंग leads to effective speaking। ये बनेगी इसकी हेडिंग। ये आप बाद में भी इस जगह पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट मान लो ये मार्जिन है, मार्जिन से शुरू करके यहाँ नंबर 1 इनकम्पिटेंट लिसनिंग आपने मार्क किए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम्पिटेंट लिसनिंग, इनकम्पिटेंट लिसनिंग। तो इसमें आप फॉर एग्जांपल ए पॉइंट लिख सकते हैं या पॉइंट ए, जब इनकम्पिटेंट आपने देखा इंटेंशन ड्रिफ्ट होती है, तो यहाँ लिखेंगे हम अटेंशन ड्रिफ्ट्स। ड्रिफ्ट्स मीन्स ये आगे पीछे जाती है, हटती है, आगे बढ़ती है। इनकम्पिटेंट आप जानते हैं जो अनक्वालिफाइड है या नाल है। तो इनकम्पिटेंट लिसनिंग से क्या होता है, ये तब होती है जब अटेंशन ड्रिफ्ट होती है। यहाँ हम लिसनर के बदले लिखेंगे LIS,
कॉमा एन आर, यानी हमने कुछ वॉवेल्स इसमें छोड़ दिए। लिसनर काउंटर्स, लिसनर काउंटर्स arguments, arguments and competes, and competes. Second, हाँ ये हो गया इसका बी। अब बी में सब पॉइंट्स आएंगे। लिस्ट, हाँ तो क्या हो जाता उसको, फिल्टर्स मैसेज, FILTERS, फिल्टर्स मैसेजेस, मतलब हुआ मैसेजेस का हमने शॉर्ट लिखा MSGS, मैसेज। यस फिल्टर्स, फिल्टर्स मैसेजेस। हाँ तो क्या लिखा हमने पहला पॉइंट, इनकॉम्पिटेंट लिसनिंग से क्या होता है, ये क्या, इसका क्या वजह, अटेंशन ड्रिफ्ट होती है। लिसनर काउंटर करता है आर्ग्यूमेंट्स और कंपीट करता है। अब इसमें आएंगे आपको 2 पॉइंट। हाँ ये वो फिल्टर करते हैं मैसेज, रिमूव करते हैं मैसेज। सेकंड, रिएक्ट टू द मैसेज, रिएक्ट टू द मैसेजेस, वो मैसेजेस को रिएक्ट करते हैं। इसके बाद अब आएगा सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट आ गया आपको, पहला ये सब हेडिंग आ गई आपको, इनकम्पिटेंट लिसनिंग। अब यहाँ आएगा आपको सेकंड पॉइंट, हाउ टू लिसन इफेक्टिवली, या इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग। तो इसमें आपको आएगा उसके लिए क्या जरूरत है, आपने देखा कंसंट्रेशन की जरूरत है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड या नीडेड, नीडेड। एक, अब इस दूसरे में आएगा दूसरा पॉइंट। पहला तो पॉइंट ए आ गया, अब पॉइंट बी, कंसंट्रेशन इज इफेक्टिव लिसनिंग। इसमें आ गया पहला आपको ए, कंसंट्रेशन इज नीडेड। इस कंसंट्रेशन इज नीडेड में आपका आएगा सब पॉइंट। क्या मतलब, अलर्टनेस हेल्प्स, एक तो ALERT, अलर्टनेस हेल्प्स, इसमें मदद करती है अलर्टनेस। फिर इसी में दूसरा पॉइंट फिजिकल फिटनेस से पैदा होती है मेंटल अलर्टनेस, फिजिकल फिटनेस इससे पैदा होती है। तो ऐसे लिखेंगे लीड्स टू मेंटल फिटनेस, MENTAL, मेंटल अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस हो गया ये इफेक्टिव लिसनिंग में पॉइंट ए। फिर इस ए के आ गए 2 पॉइंट। अब इसमें लेते हैं हम बी में नोट टेकिंग, क्योंकि इसमें मदद करती है नोट टेकिंग एड्स इफेक्टिव लिसनिंग। नोट टेकिंग का लिखेंगे हम TKG, नोट टेकिंग एड्स, नोट टेकिंग एड्स इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव, या इतना ही लिखेंगे नोट टेकिंग एड्स। तो इसमें लिखेंगे हम इस बी में नया पॉइंट, लिसनर ट्राइज टू कैप्चर द मेन पॉइंट। जब नोट टेकिंग करते हैं, लिसनर ट्राइज टू कैप्चर द मेन पॉइंट, लिसनर LIST
LIS, ऊपर ही लिखा हमने LIS कामा NR, तो यही एब्रीविएशन कंटिन्यू रखेंगे। लिसनर ट्राइज टू कैप्चर, tries to capture, listener tries to capture the main points, the main, और points का हम एब्रीविएशन लिखेंगे PTS। इसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट क्या आएगा, नोट टेकिंग हेल्प्स, नोट टेकिंग हेल्प्स द स्पीकर टू, द स्पीकर, स्पीकर का लिखेंगे SPKR, द स्पीकर इज ऑल्सो हेल्पड या बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, या इतना ही, स्पीकर ऑल्सो बेनिफिटेड, ऑल्सो बेनिफिटेड हो गया ये। अब इसी में आएगा आपको सी, अब इसमें सी जो मेन पॉइंट आपको आ गया, डिटर्मिनेशन इज नीडेड, डिटर्मिनेशन किसके लिए जरूरत है, वो आपने पैसेज पढ़कर पढ़ा होगा, समझा होगा। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इज required to or needed to, नंबर ए, नंबर वन इसे ओवरकम होती है वॉइस एंड अदर स्पेक्युलरिटीज, इससे डिटर्मिनेशन से ओवरकम होती है वॉइस एंड, वॉइस एंड, यहाँ वो एंड दूसरे किस्म का एंड लिख सकते हैं, एंड अदर स्पेक्युलरिटीज, स्पेक्युलरिटीज। इसी में दूसरा पॉइंट आएगा डिटर्मिनेशन, ये किसके लिए जरूरत है, इसे आप डिस्फर करेंगे तो फॉर्म ऑफ द मैसेज, डिस्फर, डिस्फर यानी अंडरस्टैंड करेंगे या डिकोड करेंगे, डिस्फर द फॉर्म ऑफ द मैसेज, मैसेज के ऊपर हमने लिखा है MSG, उसके बाद पॉइंट डी, पॉइंट डी में पोस्चर, पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ लिम्स, पोजीशन ऑफ हैंड, पोजीशन ऑफ हेड, दैट इज पोस्चर। इट एड्स, ये मदद करता है, नंबर वन अगर अपराइट पोस्चर होगा लिस्टर का तो इसे कंसंट्रेशन में मदद मिलती है, तो अपराइट पोस्चर, अपराइट पोस्चर, अपराइट पोस्चर से क्या मिलती है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। सेकंड, पोस्चर जो है ये मदद करता है, हेल्प्स द स्पीकर, हेल्प्स द स्पीकर का ऊपर आपने लिखा SPKR, तो यहाँ भी कंटिन्यू रखेंगे वही एब्रिविएशन। यस, अब लास्ट पे हम कंक्लूजन निकालेंगे। यस, इस पैसेज का हम निकालेंगे कंक्लूजन, यानी हमने क्या अखज़ किया, क्या समझ में आया लास्ट पे, एक ही बात लिखी है कंक्लूजन में, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन एक ही पॉइंट बन गया आपका, इफेक्टिव लिसनिंग जो है, इफेक्टिव लिसनिंग, शाबाश, इफेक्टिव लिसनिंग से किस पे इम्पैक्ट करता है, ये दोनों को इम्पैक्ट करता है, लिसनर को भी स्पीकर को भी, इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स द
लिसनर, आपने लिसनर का लिखा LS NR, एंड जो स्पीकर है द SPKR। हाँ, अब हम नीचे लिख सकते हैं कीट एब्रीवेशन। इसके बाद कीट एब्रीवेशन, एक लिखा आपने लिसनर के लिए LISN, LIS, NR। तो ये किसके लिए? लिसनर के लिए। स्पीकर के लिए लिखा SPKR, तो ये स्पीकर। इसी तरह आपने लिखा मैसेज के लिए MSG, मैसेज के लिए MESSAGE। इसी तरह पॉइंट्स के लिए हमने PTS, पॉइंट्स। और क्या एब्रीविएशन? टेकिंग के लिए TKG, टेकिंग। और इसी तो ये हुआ आज का जो हमने नोट मेकिंग में एक पैसेज सिलेक्ट किया था, कैसे नोट मेकिंग की जाती है। इसी तरह आप लोग और पैसेजेस भी सिलेक्ट करेंगे और इनकी नोट मेकिंग करेंगे। 2-4 आप 2-4 जो है उनका